ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ عوام نے BRS کی آمرانہ حکومت کا کیا خاتمہ۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر گورنر تمل سائی سندرا راجن کی سابقہ BRS حکومت پر تنقید۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی رہائش گاہ پر لہرایا قومی پرچم۔ پرانے شہر کے مختلف مقامات پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لہرایا قومی پرچم۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی صحت یاب، اپولو اسپتال میں علاج کے بعد صحت سے متعلق انہوں نے دیا بیان۔ اسدالدین اویسی کو شکست دینا ہمارا مقصد، تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی کا بیان۔ مدرسہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے لہرایا قومی پرچم۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کی عوام نے حال ہی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں آئینی روح کے خلاف چلائی جانے والی 10 سالہ آمرانہ حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے اور ریاست میں ایک عوامی حکومت تشکیل دی ہے۔ گورنر تمل سائی سندرا راجن نے جمعہ کو یوم جمہوریہ کے موقع پر پبلک گارڈن میں قومی ترنگا لہرانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزراء و دیگر نے شرکت کی۔ گورنر نے خطاب کرتے ہوئے سابقہ BRS حکومت پر تنقید کی اور الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پچھلی حکومت نے گزشتہ 10 سالوں سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور ذریعہ معاش کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور نوجوانوں کے تئیں بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، جنہوں نے تلنگانہ تحریک کے دوران اہم رول ادا کیا تھا۔ گورنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت والی حکومت میں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ The Constitution gave people enough powers to remove the rulers who run governments against the spirit of the Constitution through struggles and verdicts in the elections. We achieved a separate Telangana state with the inspiration of the Constitution and the rights enshrined in it. The Constitution also provided the people with opportunity to terminate the governments ruling against the constitutional spirit. The Telangana society has put an end to the 10-year dictatorial government run against the constitutional spirit in the recently held elections. The people's government has been formed in Telangana state. The people's mandate declared the arrogance and autocracy have no place in the Telangana state. We are reconstructing the ruined constitutional bodies, systems and values in the last 10 years. I am delighted to say that the people's government is reviving constitutional merits, systems and practices. The fruits of democracy, welfare and development will reach out the people only when the government runs the administration in tune with the spirit of the Constitution. Unilateral decisions and dictatorial approaches are against the principles of democracy. The newly elected people's government started functioning with full consciousness. The government is striving with objective of delivering equal opportunities, rendering social justice and granting freedom to all sections of the people. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قومی پرچم لہرایا اور سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈز پر پہنچ کر آرمی وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر مدینہ سرکل پر قومی ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی صدر مجلس نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر مجلس کے علاوہ مقامی قائدین اور تاجرین موجود تھے۔ اسی طرح صدر مجلس نے جامعۃ المومنات کے علاوہ شہر کے دیگر مقامات پر قومی پرچم لہرایا۔
मदरसा रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में यौम जमहूरिया के मौके पर बानी मदरसा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने अपने ख़िताब में तलबा व तालिबात से यौम जमहूरिया की क्या हकीकत है इस पर रोशनी डाली। इस मौके पर तलबा व तालिबात ने हिंदुस्तान का तराना व गीत वगैरह पेश किया। इस प्रोग्राम में सदर मदरसा मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी, नाज़िम तालीमात मौलाना मुजीबुर रहमान रहमानी और दीगर असातिज़ा इकराम के अलावा टीचर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत अब बेहतर है, जो आज सुबह यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े थे। वो अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद सेहतयाब हो गए और उन्होंने अपनी सेहत से मुताल्लिक़ एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने चक्कर खाकर गिर पड़ने की वजह बताई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ BRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी के कारगुज़ार सदर KTR और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम इनके अतराफ़ मौजूद क़ायदीन ने इन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए इन्हें अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया था, जहां इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। फ़िलहाल इनकी सेहत बेहतर है। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव साहब भी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLAs और 2 अहम पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे, आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तेलंगाना BJP के सरबराह व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि अंदरून एक हफ़्ता पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को ख़तियत दी जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को पार्टी के कौमी क़ायद अमित शाह हैदराबाद के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह हैदराबाद हल्के पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ गौर ख़ौस करते हुए रियासती BJP क़ियादत को तजावीज़ पेश करेंगे और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए रहबरी और रहनुमाई करेंगे। किशन रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को पार्लियामेंट इंतखाबात का सामना करने पूरी तरह से तैयार हो जाने की हिदायत देते हुए कहा कि हमारा मकसद तेलंगाना में कम से कम 10 हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने में मदद करना है। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि BJP का मकसद सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त से दो चार करना है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि मरकज़ में BJP मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने में कामयाब रहेगी। सहारा NGO और बाज़रघाट के नौजवानों की जानिब से 5वां ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। बाज़रघाट में मुनक़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में कई नौजवानों ने पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रेड हिल्स डिवीज़न कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज सहारा NGO की जानिब से और अहलियाना नौजवान बाज़ारघाट की जानिब से जो ब्लड डोनेशन कैंप बाज़ारघाट पलटन मस्जिद में रखा गया था, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ पर आकर ब्लड दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी मदद है तलीसीमिया पेशेंट्स की, क्योंकि उनकी जो बीमारी है उसके लिए वो उन पेशेंट्स को हर 15 दिन में उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड में से भी एक्सट्रैक्ट करे हुए रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम नौजवानों से कि आप भी, अलीम बेग साहब यहाँ बाजुक बैठे हुए, आप भी तलीसीमिया सोसाइटी से जाके रब्त पैदा करिए, कोशिश करिए ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप्स और कराने की। हम भी इंशाल्लाह हमारी जानिब से और ऐसे कैंप्स वक्त पे कराते रहेंगे ताकि हम हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकें। और मैं तमाम से भी गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद भी तलीसीमिया सोसाइटी से राब्ते में आइए,
वहाँ की परेशानी देखिए, किस किस्म के पेशेंट्स रहते हैं और कैसे कैसे लोगों को इस खून की ज़रूरत रहती है, और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन नौजवान कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अलग अलग इलाक़ों में अगर हम ये ब्लड कैंप्स कराएं तो बहुत बड़ा फ़ायदा हम थैलेसीमिया सोसाइटी को कर सकते हैं और वहाँ के पेशेंट्स के लिए हम बहुत बड़ी मदद साबित हो सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जाहिद अली ख़ान की क़ियादत और आमिर अली ख़ान MLC की निगरानी में आबिद अली ख़ान एजुकेशन ट्रस्ट के तहत इदारे सियासत की जानिब से शाये करदा जमात दहम ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक की भैंसा के क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, असातिज़ा जिनमें सैयद मोहसिन, सैयद जामे व दीगर के अलावा भैंसा सियासत रिपोर्टर अज़हर अहमद ख़ान मौजूद थे। हल्क़े असम्बली ज़हराबाद में यौम जमहूरिया के मौके पर रुकन असम्बली ज़हराबाद के मानिक राव ने कई एक मुकामात पर कौमी परचम लहराया। सबसे पहले RD ऑफिस में वेंका रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इसके बाद MRO ऑफिस में रविंदर ने झंडा लहराया। इस मौके पर नायब तहसीलदार वमशीधर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह म्यूनसिपल दफ्तर ज़हराबाद में सुभाष राव देशमुख ने कौमी परचम लहराया, जबकि कांग्रेस के सदर के नरसिम्लू, साबिक़ा वाइस चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मियाँ, कांग्रेस कारकुनान मोहम्मद इस्माइल नाइस टेलर, मोहम्मद अख्तर हुसैन सीनियर सहाफ़ी, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अली, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद जहांगीर, BRS लीडर्स जाकिर हुसैन ड्राइवर कॉलोनी और मोहम्मद मुबिन ने भी अहमदनगर कॉलोनी में तिरंगा लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर सरोजनी देवी अस्पताल में भी कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर CS RMO नजफ़ी बेगम और डॉक्टर्स के अलावा दीगर मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल ख़ान ने कहा कि अवामी फ़लाह व तरक्की के मकसद से मुख्तलिफ़ महकमे जात के ज़रिए बेहतरीन खिदमात फ़राहम की जा रही है। आज बरोज़ जुमा ज़िला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ परेड ग्राउंड में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़रीब में ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल ख़ान ने शिरकत की और कौमी परचम लहराया। पुलिस की सलामी लेने के बाद आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कई एक तरक्याती प्रोग्रामों को पेश किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान का आइन लिखकर एक जमहूरी मुल्क तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ज़िले में पुरअमन माहौल में रियासती असम्बली इंतखाबात और सिंगरेनी वर्कर्स के इंतखाबात कामयाबी के साथ अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र करने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीम महालक्ष्मी के ज़रिए ज़िले में अब तक 7 लाख से ज़ायद ख़वातीन ने सफ़र किया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए राजीव आरोग्यश्री की हद को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। कहा अब तक हमारे ज़िले में तकरीबन 1399 लोगों ने आरोग्यश्री के ज़रिए इस्तेफ़ादा किया है। यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद में वाक़ नीलोफर अस्पताल में कौमी परचम लहराया गया। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर T उषा रानी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर CS RMO डॉक्टर ज्योति और दीगर डॉक्टर्स के अलावा मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थे। सिरपुर के रुकन असम्बली डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने रिहाइशगाह MLA कैंप ऑफिस और कागज़ नगर के गांधी चौक के अलावा दीगर मुकामात पर यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तमाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। तरक्की पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कागज़ नगर में मास्टर प्लान रुका हुआ है और वादा किया कि मास्टर प्लान पर जल्द अमल किया जाएगा और बुनियादी सहूलतें फराहम करते हुए तरक्की दी जाएगी। यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद में वाक़ मासब टैंक शांति नगर में एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर में भी डायरेक्टर डॉक्टर S रामचंद्र ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मल्लेश्वरी के अलावा दीगर मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। निर्मल के भैंसा में यौम जमहूरिया बड़ी ही जोश खरोश के साथ मनाई गई और कई एक मुकामात पर कौमी परचम लहराया गया। भैंसा में जश्न यौम जमहूरिया तकरीब जोश खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा ने शहर के मुख्तलिफ़ शहरों पर प्रभात फेरी करते हुए मुजाहरे पेश किए, जबकि पुलिस स्टेशन में ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार प्रवीण कुमार, RDO दफ्तर पर RDO कोमल रेड्डी, जूनियर सिविल कोर्ट पर मोअज़्ज़िज़ जज देविंदर बाबू ने परचम लहराया, जबकि महकमे पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। बल्दिया दफ्तर पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस, अक़लियती अक़ामती स्कूल पर प्रिंसिपल अब्दुल जब्बार, गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पर MLA P रामाराव पटेल, कांग्रेस दफ्तर पर सैयद शाहिद मिलन और दरांची काटन फैक्ट्री में BJP कायद मोहन राव पटेल ने
ترنگا لہرایا۔ اسی طرح BRS قائدین نے BRS دفتر پر ترنگا لہرایا۔ علاوہ ازیں دینی مدارس جن میں دارالعلوم جامعہ عربیہ مفتی عبدالغفور خالد قاسمی، مدرسہ ماہد الابرار میں حافظ سید عبداللطیف، ادارہ انفال المدارس میں حافظ اعجاز قریشی، مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ اویسی نگر میں ناظم مولانا محمد امجد خان، مکتب دارالقرآن بارہ امام میں مجلس ٹاؤن جنرل سیکریٹری عبدالماجد نمائندہ کونسلر، صفا بیت المال دفتر پر صدر حافظ منیر الدین اور پانڈری گلی چوک کے علاوہ سید شاہ حضرت محمد شاہ درگاہ احاطے میں مولانا یوسف قاسمی نے پرچم کشائی انجام دی۔ شہر حیدرآباد میں یوم جمہوریہ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ نامپلی میں واقع تلنگانہ کے درجہ چہارم سینٹرل ملازمین ایسوسی ایشن کے دفتر میں بھی یوم جمہوریہ تقریب منائی گئی۔ درجہ چہارم کے اعزازی صدر قادر بن حسن، ریاستی صدر جی گیانیشور، جنرل سیکریٹری گنگادھر کے علاوہ دیگر ملازمین کی کثیر تعداد نے اس موقع پر شرکت کی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، عوام نے BRS کی آمرانہ حکومت کا کیا خاتمہ۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر گورنر تمل سائی سندر راجن کی سابقہ BRS حکومت پر تنقید۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنی رہائش گاہ پر لہرایا قومی پرچم۔ پرانے شہر کے مختلف مقامات پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لہرایا قومی پرچم۔ سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی صحت یاب، اپولو اسپتال میں علاج کے بعد صحت سے متعلق انہوں نے دیا بیان۔ اسدالدین اویسی کو شکست دینا ہمارا مقصد، تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی کا بیان۔ مدرسہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے لہرایا قومی پرچم۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ AK سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاد آباد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے خوابوں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطاپور، RR ڈسٹرکٹ۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔